A very good evening to all. I welcome you on the third day of this 5 day workshop on OER and e-resources. Till now, we have developed an understanding about what do we mean by OER, what are e-resources, and we have also discussed two major platforms. One was EPG Pathshala and the second was the NDLI, that is National Digital Library of India. On the third day, we'll be covering two more very important platforms. One is eGyan Kosh and another is InflibNet. So today there will be two sessions, and for that session we have with us Dr. Manisha Mishra. She'll be taking these sessions, and these sessions will also be hands-on session. So in the first session, she'll be discussing eGyan Kosh, and in the second session, she'll be taking up InflibNet. So now I welcome you, Manisha, and now I request you to start your session. Over to you, Manisha. Thank you, Didi. Am I audible? Yes, you are audible. A warm and graceful good evening to all the teachers and the students and everyone gathered here. Today, we have gathered here for the discussing e-Gyan Kosh in this 5 days online workshop on e-resources and OER. First of all, I pray to Ma Durga. Today is Shardiya Navratris day 1. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanstita. Namastasyai, 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 Namo Nama. May Ma Durga bless all of us. So let us start the journey of understanding e-Gyan Kosh. First of all, briefly, I will discuss little bit theoretical assumptions which are associated with e-Gyan Kosh. Thereafter, we will go through practical hands-on session, and I request all my students that side by side you practice it at your part also. Parallelly, if you will step by step follow the pattern, then definitely you will be able to download some of the important text which are very beneficial it would be very beneficial for all of you, because e-Gyan Kosh, as you all know, that it is the repository of IGNU, Indira Gandhi National Open University, and the way they discuss the way of preparing those modules are very much suitable for your text based oriented studies, which is for your syllabus point of view, that will benefit you a lot. And for your net examination, for competitive exams, they have systematically they have discussed all these things. When I will discuss the next one, that is InflibNet, as InflibNet is a vast area, there specifically I will focus on enlist and how to use enlist. That was some advanced material. So first we will start with the how to download textbook textbook type material, standard material which is syllabus oriented. Then if you want to add something more, if you want to garnish your answer, if you make it more relevant with critical analysis and perspective, you can add the resources from which you can take from the InflibNet enlist and using Juster and other aspects. So, first of all, when we talk about eGyan Kosh, eGyan Kosh is such a repository which is available to each and everyone. There is a provision of registration, but that is specifically D space, a special feature is there. That is for those who wish to contribute there. It is essential for them. Otherwise, each and everyone can access it. But if you want that you get notifications and important updates you want to receive in your mail, for that purpose you need a registration. You just register through your email address, which and use one password for eGyan Kosh, and simply you can access the resources. So I'm going to share one PPT. uh, is it visible? Uh, just a minute.
Yes, it is visible. Yes, yes, Thank you. Manisha, we can see it. When we talk about e-Gyan Kosh, first of all, we have to understand that here uh, the students, specifically the students of higher education, they can anywhere they can access the material. You will receive it in the PDF format, and when you can access it from anywhere, it means the boundary of space is not required. Easily you can download at anywhere, you can access it easily, and there is no need of carrying any printed hard copies and book with you. And you can access it with mobile also and with computer also. It is the national digital repository to store, index, preserve, distribute and share digital learning resources. And it was basically developed by the open and distance learning institutions, जो देश के दूरस्थ शिक्षा संस्थान हैं उनके द्वारा, मुक्त शिक्षण संस्थानों द्वारा ई ज्ञान कोश की जो रिपोजिटरी है उसकी स्टडी मटेरियल्स को डेवलप किया गया है। ये कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है, यानी आप इसको डायरेक्टली यू कैन नॉट जस्ट कॉपी एंड यूज इट फॉर योर ओन पर्पस. The rights are reserved with IGNOU, Indira Gandhi National Open University, and if it may be used for OER, then it is specifically that will be indicated. Then only it can be the part of the OER when it is indicated properly. So without any cost, it's provide a huge resources starting from bachelor degree to master degree to certificate courses, diploma courses for each and every section. Even those students who registered in IGNOU, they can get the access of their study materials systematically. So in theoretically, if we talk about how to download, you have to go to the website. It's specific that its website as it is being showing that http://egyankos.ac.in#. Then you have to click on IGNOU, and such say for example all of you are the students of social sciences, then you can click on the social sciences. Then you have to go to the department. For going to the department, you have to click on the labels. Then after, you have to select your preferred courses. There are several sub communities when you go to the courses: bachelor degree courses, certificate, diploma, master and research. And then you go to the subject which you want to go through, and there you will get various topics. And the most important thing is that कि ई कोश में आपको हिंदी में भी मटेरियल उपलब्ध है. हाँ, ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश में जितना मटेरियल है उतना हिंदी में नहीं है, बट अभी साइड बाय साइड आपके कई टॉपिक में आपको पैरेलली मिल जा रहा है, और वो सिंपली आप उसको सर्च कर सकते हैं. जब हम लोग हैंड्स ऑन सेशन में आएंगे, हम आपको दिखाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों का मटेरियल डाउनलोड करके कि आप कहीं से भी विदाउट एनी कॉस्ट इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. और इसके लिए बहुत रजिस्टर्ड होना और भी बहुत एसेंशियल आपके लिए नहीं है. जो ई ज्ञान क्योंकि आप होम पेज पे जाएंगे तो देयर आर सेवरल कम्युनिटीज, एंड last year there are only 4 communities, but this year they have additionally they have added 3 more communities there. First is Facebook live recorded videos, जहाँ पे जो प्रोफेसर्स टीचर्स वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपने लिबरेशंस देते हैं. फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स जो कि आपके टेक्स्ट के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आप अवेल कर सकते हैं. स्वयं कोर्स का कंटेंट आप इसमें अवेलेबल है. यूट्यूब के वीडियोस भी आप इस ज्ञान को इसमें ज्ञान कोश में आप ब्राउज कर सकते हैं. देन जो नया एडिशन है दैट इज इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग. इसके तहत आप जर्नल्स के भी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल जो कि ज्ञान कोश से एंडोर्स है उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पर्टिकुलर सबसेट के किसी टॉपिक से रिलेटेड वो मटेरियल वहां अवेलेबल है. देन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन का भी एक सेक्शन उसमें ऐड हुआ है, जिसको कि आप ब्राउज करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके जो अपडेटेड स्टडीज हैं, रिसर्चेस हैं, उसको आप ब्राउज कर सकते हैं. और स्वयं प्रभा चैनल्स को भी आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स है डिफरेंट कोर्सेज के, ये आपके बीएजी जो है जैसे जनरल कोर्स होता है. कई यूनिवर्सिटीज में जनरल कोर्स और ऑनर्स कोर्स अलग से चलता है. जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में यू विल फाइंड दैट देयर इज वन जनरल कोर्स एंड अनदर इज ऑनर्स कोर्स. सो जनरल कोर्स का स्टडी मटेरियल अलग, जैसे बीएजी इंग्लिश, हिस्ट्री, इस तरह से अवेलेबल होगा.
फिर ऑनर्स कोर्स की जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें भी ये एच, जैसे आप लोगों का ऑनर्स का एब्रिविएशन यूज होता है, इस तरह से करके देयर इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यू विल फाइंड देयर सोशल साइंसेस आर्ट स्ट्रीम की। कुछ अदर कोर्सेज भी है, ये भी आपका रिसेंट डेवलपमेंट है कि उसमें बैचलर ऑफ साइंस की भी कम्युनिटी डेवलप की गई है और साथ ही बैचलर ऑफ कॉमर्स की कम्युनिटी है, जिसमें कि साइंस और कॉमर्स के भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की आप डीप स्टडी कर सकते हैं। एंड बीए वोकेशनल स्टडीज, टूरिज्म और मैनेजमेंट कम्युनिटी भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये जो सब कम्युनिटीज है, इन सब कम्युनिटीज में भी और अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग इश्यूज हैं, उस पर फर्दर टॉपिक्स है। जब वन बाय वन हम लोग टैब के थ्रू ब्राउज करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं और अलग से आप फोल्डर वाइज अपना हर टॉपिक का, जैसे से फॉर एग्जांपल आप बीए थर्ड ईयर में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एक सेक्शन पर आप अलग से मटेरियल कलेक्ट करके उसका अलग फोल्डर वाइज कलेक्शन बना सकते हैं, इग्नू से लेकर इन्फ्लिपनेट से लेकर हर एरिया, ईपीजी पाठशाला से लेकर। तब क्या होगा, जो अलग अलग एरियाज में किस तरह से एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उन सारे पर्सपेक्टिव को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर पाएंगे। होम पेज के बाद जो नेक्स्ट ब्राउज होता है दैट इज ब्राउजिंग टैब जो है, इसमें अलग अलग कम्युनिटीज और उसके कलेक्शन है। इसमें जो ब्राउज करने का तरीका है, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सारे कोर्सेस हैं, बैचलर, मास्टर्स, आपके डिप्लोमा, ये सब कोर्सेस हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं। अब ब्राउज करने के 4 तरीके हैं। एक तो इशू डेट से आप ब्राउज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट से लेके आप रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं। दूसरा कंट्रीब्यूशन, कौन से ऑथर के, बाय ऑथर नेम आप ब्राउज कर सकते हैं। यू आर अवेयर दैट ये इज अ रेप्यूटेड ऑथर, तो यू कैन ब्राउज द आर्टिकल्स रिटन बाय हिम और हर। टाइटल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपका जो टॉपिक है उसके टाइटल के थ्रू आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज आप इसको देख सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है आपके ई ज्ञान कोश का, दैट इज द हेल्प टैब के थ्रू डी स्पेस है। डी स्पेस में क्या है, वो ऐसे मटेरियल्स को प्रिजर्व करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोडक्ट। यहाँ पर यू कैन फाइंड आर्टिकल्स, वर्किंग पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर और वेरियस टेक्स्ट जो डिजिटल फॉर्मेट में आएगा। और ये डेली जो है ये कंटेंट ग्रो कर रहा है, क्योंकि और नए कम्युनिटीज इसमें ऐड हो रहे हैं। और इसको ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया है दैट विच कैन कॉरेस्पॉन्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज सच एज स्कूल, डिपार्टमेंट, लैब्स, रिसर्च सेंटर से कॉरेस्पॉन्ड करके उन लोगों से इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अलग अलग कम्युनिटीज है, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सब कम्युनिटीज है और उसमें आपको नए एरियाज पर नंबर ऑफ कलेक्शंस मिलेंगे। और इन कलेक्शंस में कई आइटम्स है जो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली इनडायरेक्टली बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप डी स्पेस को ब्राउज करेंगे, उसमें भी सबसे पहले आप कम्युनिटी के थ्रू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्राउज कर सकते हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकली सिलेक्शन के बाद ऑथर के थ्रू, सब्जेक्ट, डेट वाइज कर सकते हैं। और जो डी स्पेस का जो स्पेशल फीचर है ना, कि इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू ए कलेक्शन एंड रिसीव ईमेल अपडेट्स व्हेन न्यू आइटम्स आर एडेड, यू कैन साइन इट। ये कंपल्सरी नहीं, इट्स अप टू योर विश। And if you wish to go to DSpace page that track your subscription, तुम तो आपने कौन कौन सा सब्सक्राइब किया है, and other interaction with DSpace requiring authorization if you are a submitter for a collection for instance, तो उसके रिलेटेड जो अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे रिलेटेड उस डिटेल्स को ट्रैक करना है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपको साइन इन करना होगा, या अपनी खुद की प्रोफाइल अगर आप एडिट करना चाहें। तो ये एक स्पेशल फीचर जो है सबमिट के ऑप्शन में भी आता है, जो कि यूजर को एनेबल करता है कि वो कुछ आइटम कि यूजर टू ऐड एन आइटम टू डी स्पेस, यानी आप उसमें रजिस्टर करके अगर आपको लगता है कि आपने एक पर्टिकुलर पेपर में बहुत डिटेल में आपने अच्छा सा रिसर्च पेपर डेवलप किया है, तो यू कैन, एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन, यू कैन ऐड देयर। और उसमें सबमिशन के लिए उसका प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन फिल करना होता है, और उस आइटम को फिल करके एक मेटा डाटा फॉर्म होता है जिसमें कि वेरियस डाटास का कलेक्शन रहता है, और फिर उस फाइल को अपलोड करके वो डिजिटल आइटम का वो उसको अपलोड करके देना होता है। सो ईच कम्युनिटी सेट्स इट्स ओन सबमिशन पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर लिखने के लिए दिस इज वेरी एसेंशियल दैट योर पेपर शुड बी अप टू द मार्क, इट शुड मीट देयर गाइडलाइंस। सो
The process of submission has some information they will collect, and uploading the file comprising some digital items, but they have their submission policy, and that have to be followed. Another the feature which is associated with DSpace is the personal page that is maintained for each member. एक आर जो मेंबर जो रजिस्टर्ड होते हैं ई ज्ञान कोश में, उनका अपना एक पर्सनल पेज होता है जिसमें ऐसे सारे आइटम्स होते हैं, सबमिशन के प्रोसेसेस होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मेंबर. एक टास्क लिस्ट इसमें एडिशन होती है जिससे कि वो अपने जो सबमिट किए हुए मटेरियल्स उसको एडिट रिव्यू चेक कर सकता है. फ्यूचर में भी इस पेज को मेंटेन किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर के लिए, और उसको टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी भेजे जाते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये जो आपका ई ज्ञान कोश का जो एक ब्रीफ हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि एक अच्छा रिपोजिटरी है, एंड इट इज टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि इजीली एक्सेसिबल बाय द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जैसे इनफ्लिपनेट में यू नीड द वाया चैनल ऑफ कॉलेज टू बी रजिस्टर्ड देयर, हियर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन access to the eGyan course materials, and it's is very beneficial when you are getting all the courses associated with graduation level, master's level, and systematic point wise discussion on each and everything is there, and the contributors mostly they are professor, associate professor from some esteemed institutions, so getting their ideas and paper developed by them will definitely help. Well, not now, let me come to before coming to the hands-on session, is there any doubt, any clarification needed, whichever I have discussed about it? If not, then I can proceed for the hands-on session. Okay. My screen is visible now? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, Manisha, it is visible. Thank you. I'm just going to discuss in a simple way how to access eGyan Kosh. First of all, go to the Google homepage, then type eGyan Kosh. This eGyan Kosh home, your URL is here, https egyankosh.ac.in. Just click on it. ये आपका जो इंटरफेस है ये इसका होम पेज आ जाता है. होम पेज में देखिए जिन टॉपिक्स को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब हमको इसको वन बाय वन देख सकते हैं कि कम्युनिटीज इन ई ज्ञान कोश, जिसमें आप अपने पसंद के अनुसार एक कम्युनिटी सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे देखिए FB लाइफ रिकॉर्डेड कम्युनिटीज, जब आप इसमें जाएंगे यहाँ पे भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर इशू, आपके इशू डेट, कंट्रीब्यूटर, टाइटल, सब्जेक्ट, किसी जैसे हम पहले सब्जेक्ट में जाते हैं. सब्जेक्ट में जाएंगे, से फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटिकल साइंस लिखा, पॉलिटिकल साइंस लिख के सिंपल वे में हम गो करते हैं. तो right now we doesn't have in this way, और alphabetically जब हम जाते हैं तो you will find there are several groups they have. जैसे कॉमर्स, आपके बीएड से रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशंस है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. से फॉर एग्जांपल कोई अगर आपके एजुकेशन की स्टूडेंट है, वो इससे रिलेटेड वीडियो को देखना चाहती है, तो यहाँ आप व्यू पर जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन इट, और फिर ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं. मतलब जब हम लोग कहते हैं ना कि इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी होना चाहिए, तो चाहे ज्योग्राफी की स्टूडेंट हो, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर की स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, वो दे मस्ट नॉट रिजर्व देमसेल्फ इन देयर ओन फील्ड. आपको इंटरैक्टिव अगर, और आज के समय में एज वी these elements which we are going through, these are basically the elements of education, but now it has become a part and parcel for us. We have to integrate our learning, or just if when you will click it, so is it audible?
No, Manisha, it is not audible. I mean, at least to me, it is not audible. Okay. Sunita, can you hear it? जैसे ही वो हुआ तब तक मनीषा ने पॉज कर दिया. You just pause the हाँ video. हाँ. Just let it be play. ना थोड़ा सा play होगा ना, then we will be able to listen. No, it's playing, Yeah. but still, voice is not very clear. Voice is very low. Yes. Voice is very low. Dr. Elizabeth Kurula from School of Education. This course is Yeah, it is slightly better. It's slightly better. the study Okay. of childhood, children, and adolescents. All of you know that Manisha, unmute yourself. It was audible? Yes. Okay. So in this way, you can go through some of the important videos. Let me go again to the home page. This is an example of Facebook video. As we are going through this interface, when you will directly using that particular video, you can listen it. Facebook live recorded session के बाद, let's come to the most important part for our students, that is self-learning materials. IGNOU self-learning materials, SLM. Am I audible, Dee? My voice is clear? Yes, Manisha, you're audible. And screen is visible, na, clearly? Yeah, screen is visible. Just go ahead. Whenever there is a problem, I'll let you know. Okay, thank you. Say, for example, if we go to the IGNOU self-learning materials, we have so many schools. See, there are contributors, means you can browse the articles as per the, you are getting the name of the contributors. आप authors के contribution के basis पे भी article browse कर सकते हैं. Subject wise भी you can browse the important topics. Issue, date issue, आप latest पढ़ना चाहते हैं या historical development, उसके basis पर you can browse. So, and you will find there are various sub-communities within this community of self-learning materials. School of Humanities, School of Social Sciences, School of Science, Education. And there are total 22 schools added in this sub-community. And it is the most useful part for our student, I think so, because you are getting a systematic PDF for your topic. Say, for example, let us go to School of Social Sciences. आप School of Social Sciences में जाइए. यहाँ जब आप जाते हैं, you will find issue date, contributor, title, subject. और उसमें सब कम्युनिटी है. जैसे हम लोग पहले थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि हर कम्युनिटी की एक सब कम्युनिटीज है, उसमें अलग अलग सेक्शन वाइज उसको और कैटेगराइज किया गया है. यहाँ हमें लेबल्स में जाना होगा. लेबल्स में जाएंगे तो वहाँ कोर्स, किस कोर्स के डिटेल्स में यू वांट टू ब्राउज, वो उसमें पूछा जाएगा. देयर इज बैचलर डिग्री प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम एंड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम. से फॉर एग्जाम्पल you want to go to bachelor degree program. स्टूडेंट्स कोई पैरेलली कर रहे हैं कि नहीं, तभी आप लोगों को बहुत आप एकदम ट्रेंड हो जाएंगे. आप साथ में करने की कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप. एनीबॉडी इज फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप? I am doing. Yes. Some of them are doing, Manisha. Okay, thank you. So sub communities within this community अगर हम जाए, you will find two options. One is archived, another is current. यानी यहाँ जो पहले के कोर्सेज है उससे रिलेटेड मटेरियल्स भी यहाँ अवेलेबल है, और अभी जो करंट कोर्सेज which are running उसके भी अवेलेबल है. Let us go to the current course.
करंट में जाएंगे तो ये करंट कोर्स में से फॉर एग्जांपल देयर आर सम अदर सब कम्युनिटीज। अगर हम देखिए जैसे ग्रेजुएशन के कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पर सब कम्युनिटी यहाँ मिल रहा है हमें, साइकोलॉजी है, आपका आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। हम अपने सब्जेक्ट में ही जाते हैं, क्यों? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में व्हेन वी गो देयर इज अगेन सब कम्युनिटीज। एक कोर कोर्सेज, जैसे आपके सब्जेक्ट में आप जानते हैं कुछ कोर्स कोर्सेज हैं, कुछ एंसिलरी है, उसमें आपको कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी आप कहीं पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ने अलग से सिलेक्ट किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पेपर, इस तरह से होता है। फिर जेनेरिक इलेक्टिव, फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। लेट अस गो टू द कोर कोर्सेज। देखिए यहाँ पर कम्युनिटीज में जो ये प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम की गाइडलाइंस भी दी हुई है। नॉट ओनली कोर्स डिटेल इज अवेलेबल देयर, यू आर गेटिंग द प्रोग्राम गाइडलाइंस ऑल्सो। यहाँ पर भी इन पैरेलल यू कैन सी दैट वेयर द कंट्रीब्यूटर्स, द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स आर हियर। Those who have contributed in Hindi, their names are written in Hindi. Some of the contributions are made here, and how many papers they have. Say, for example, here Jagpal Singh, he has contributed 10 papers. Subject wise, if you can see, political science, there are the theme political science पर 15 आपको materials available है। जैसे Indian Constitution में 8 है, fundamental duties पर 4 है, preamble पर 3 है। So इशू वाइज डेट इशू देखिए 2021 इस करंट ईयर के 277 रिसेंट अपलोड्स जो है वो किए गए हैं, कंट्रीब्यूट किया गया है। 2020 में 203 मटेरियल्स अपलोड हुए हैं, यानी आपको लेटेस्ट एडिशन में सारी चीजें अवेलेबल होगी। लेट अस गो टू द कोर कोर्स। व्हेन वी विल गो टू द कोर्स से इसमें आप देखिए जो सब कम्युनिटीज बन रही है। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। पब्लिक पॉलिसी, भारत में लोक नीति एवं प्रशासन, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। लेट अस गो टू हिंदी मटेरियल, क्योंकि एक जो या देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी मटेरियल अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल वी गो टू द भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। जब आप राजनीतिक प्रक्रिया में जाएंगे यू विल गेट द कम्युनिटीज अंडर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था। यू क्लिक ऑन इट और इस इंटरफेस में इशू बेस, कंट्रीब्यूटर बेस, टाइटल बेस, सब्जेक्ट बेस, हमें 4 जो है रिजल्ट अवेलेबल हुए हैं। भारत की दलीय प्रणाली, भारत में राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था। लेटेस्ट भारत की दलीय प्रणाली जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम क्लिक करते हैं। ये 2020 में इसको कंट्रीब्यूट किया गया था। फिर इसको हम नीचे कर्सर को ले आएंगे। ये आपका साइट जो है देखिए, यू जस्ट चेक इट कि आप इसके इजीली, क्योंकि केबी में है तो यू कैन इजीली डाउनलोड। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर एमबी है, जीबी है, उसको अपना डाउनलोड करके, अगर छोटी फाइल है आपको इजीली यू कैन डाउनलोड एंड कीप इट विथ योरसेल्फ। और बड़ी फाइल है तो उसके लिए आप अपना सिस्टम यूज करेंगे, छोटी फाइल है तो उसके लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये 129.77 केबी का है और ये एडोब फॉर्मेट में अवेलेबल है। फिर हम इसको व्यू और ओपन पर क्लिक करेंगे। ये आपका ओपन हुआ ये पीडीएफ, और इसके बाद ये पीडीएफ इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उम्मीद करते हैं शिकायत नहीं रहेगी कि हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हिंदी में भी ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट पर अवेलेबल है, हर पेपर पर, हर टॉपिक पर। यू कैन ब्राउज इट इजीली। गो टू द डाउनलोड बटन, डाउनलोड इट। डाउनलोड करने में से फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप इसको एक नाम दे दीजिए एंड यू कैन सेव इट इन योर डेस्कटॉप। और यू कैन डायरेक्टली, अगर आप इसको डाउनलोड ना भी करना चाहे तो आप इसको इजीली भी विदाउट डाउनलोडिंग आप इसको यू कैन ब्राउज इट, यू कैन जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि in my view that if you go through the article and you jot down some important point, that will be more beneficial. Means keeping it download and keep it in your system and mobile, when you will get the time you doesn't know. So it's better to go through the article and write some important points side by side. तो इस तरह से आप इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन अगेन लेट अस कम टू द होम पेज।
यहां तक जितना डिस्कस हुआ है, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? देन आई एम गोइंग बैक, बैक बटन पर क्लिक कर रहे हैं. नो कंफ्यूजन मैम. मैम, यस, हाँ, मैम यस. स्टार्टिंग में जैसे आपने विजिट किया तो वो मैं नहीं देख पाई क्योंकि मेरा क्लास लेफ्ट हो गया था. अच्छा, ओके. आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. देखिए, गूगल में ई ज्ञान कोश टाइप किए, क्लिक किए ई ज्ञान कोश पर. एक तो सिंपल आप जो सर्च ई ज्ञान कोश का ऊपर यहाँ बना हुआ है, इस बॉक्स में भी आप अपना पर्टिकुलर टॉपिक लिख के ब्राउज कर सकते हैं. बट इसमें क्या है, क्योंकि कीवर्ड्स अगर आप बहुत सिस्टमेटिकली ना प्रोवाइड करें या फिल्टर्स अगर आप फिल्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर बहुत खारी में ना हो तो इसको ना यूज करके आप कम्युनिटी वाइज जाएंगे तो आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा. आप कम्युनिटीज ऑफ विज्ञान कोश में आइएगा, गो टू द सेल्फ लर्निंग मटेरियल. सेल्फ लर्निंग मटेरियल में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में आप जाइए. देयर यू सेलेक्ट द लेवल्स. लेवल्स में जैसे जैसे हम लोग पहले बैचलर डिग्री पर आए थे, लेट अस गो टू मास्टर डिग्री. मास्टर डिग्री प्रोग्राम में गए, करंट सब्जेक्ट जो डिस्कस हो रहे हैं उसके देखिए, एमए इन गांधी एंड पीस स्टडीज, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स. लेट्स गो टू द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हम गए, यहाँ पे भी आपके इसमें भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर OER कंटेंट 3 लेवल्स ऑफ आपको मटेरियल इसमें अवेलेबल है. फर्स्ट ईयर में जाएंगे, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. इस तरह से आपको कोई भी एक टॉपिक, जैसे इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी पे हम गए, इस पे क्लिक किए. इस पर्टिकुलर कलेक्शन के भी इतने पार्ट एंड पार्सल है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, हम इस पर क्लिक किए. साइड बाय साइड कंट्रीब्यूटर का डिटेल्स, किस डेट में ये पब्लिश हुआ है उसका डिटेल, ये आपका अवेलेबल हो रहा है. और मतलब आप इसमें कब कब जो इशू डेट है, किस डेट में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक अपलोड किया गया है, बाय विच कंट्रीब्यूटर, दिस ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल हियर. से फॉर एग्जांपल यू natural resources and environment, you want to go through this particular material, click on it. It is the title of that particular material, contributor IC Thinkra, year of publication 2017, IGNOU publisher, URL. ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक 1, ये जो बुक का कलेक्शन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इसको कलेक्ट किया गया है. इसमें आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस यूनिट 3 PDF, you click on the view button. इस पर आप आइए, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट. इसके बाद आप इसमें यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं. इज इट क्लियर नाउ? Yes ma'am. Yes ma'am. Thank you ma'am. Now let us again go to the home page, because there are several features. When you will browse it one by one, you will go through many more important contents. एक अनदर मेथड्स के थ्रू भी आप इसको सेलेक्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए. अब देखिए यहाँ सर्च में आप लेवल डिसाइड करेंगे, यानी फिल्टर करेंगे. सर्च में लेवल्स में देखिए इग्नू मटेरियल्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, और लेवल में जब आएंगे बैचलर प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम. से फॉर एग्जांपल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहते हैं कि कोई डिप्लोमा प्रोग्राम से रिलेटेड कोई मटेरियल है. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ कीवर्ड्स टाइप कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स. कभी कभी होता है कि हो सकता है आप जो पर्टिकुलर मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पर्टिकुलर सेक्शन में अवेलेबल नहीं हो, दूसरे सेक्शन में अवेलेबल हो. हम सब्जेक्ट वाइज करके कंट्रीब्यूटर वाइज करें. यहाँ पर इक्वल्स में आप इसको इक्वल बटन को रखेंगे ताकि वो हर तरह के मटेरियल पर आपको डिटेल्स मिल सके. आप राइटर वाइज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. और फिर जब आप उस पर सर्च करेंगे तो
यू विल गेट सम मटेरियल, फिल्टर्ड मटेरियल। तब आपके पास देखिए स्पेसिफिक, आप एक टॉपिक ढूंढ रहे थे, उससे रिलेटेड टॉपिक, मुझे संविधान का निर्माण आपको मिला, प्रस्तावना मिली, संविधान सभा, तो यहाँ क्या हुआ, वैसे मटेरियल्स आए, इसका जो आपने एक स्पेसिफिक फिल्टर यूज किया, उससे रिलेटेड जो मटेरियल अवेलेबल था, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल अवेलेबल हुआ। यानी फिल्टर से क्या होगा, आप अपने सर्च को और रिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट वाइज कर दिए, और यहाँ पर हमने फिर से कुछ कीवर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम ऐड करते हैं तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऐड करके हम अगर इसको सर्च करेंगे तो मे बी वी विल गेट मोर स्पेसिफिक मैटर। और वो जो स्पेसिफिक मैटर्स होता है वो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा कह सकते हैं कि हमारा जो सर्च है उस सर्च को और इम्प्रूव बनाता है वो, और उसको रिफाइन करके हम सर्च करते हैं। जैसे आप राइटर वाइज देखना चाहे, जैसे प्रताप शरण, इनके आप उस पर क्लिक करेंगे, डेट वाइज फाइल अवेलेबल है कि नहीं, 2 फाइल अवेलेबल है, कौन कौन सी फाइल है, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक मतलब आप ऑथर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इशू वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल को, और उसके बेसिस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको ब्राउज कर सकते हैं। जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आप गए, आप यहाँ पर जैसे हम अपने सब्जेक्ट करंट में गए, उसके बाद इफ यू विश टू गो टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्लिक किए, से फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर में क्या मटेरियल अवेलेबल है उस पर गए। यहाँ पर जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, भले रिसर्च मेथोडोलॉजी आप दूसरे पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन गो थ्रू इट, उस पर आपने क्लिक किया। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ सोशल रिसर्च, सपोज करो क्वांटिटेटिव मेथड्स, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सैम्पलिंग मेथड, एस्टिमेट ऑफ सैंपल साइज, अब उस क्वांटिटेटिव मेथड में भी आपके 5 यूनिट्स अवेलेबल है, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे, देन यूनिट 15 को आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, 11 पेज मटेरियल है। यानी अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरडिसिप्लिनरी मीन से भी जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो यू कैन फाइंड वेरियस मटेरियल ऑफ योर ओन व्यूज। यस, इट्स हियर। यानी आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर आपको मटेरियल यहाँ अवेलेबल ना हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं हो, तो यू हैव टू सर्च योर पर्टिकुलर मटेरियल इन अनदर सेक्शन। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now come to the home page. Home page में जब हम communities के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, उसके बाद जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज कि आपके स्वयं कोर्स कंटेंट। स्वयं कोर्स कंटेंट जो है ये भी आपके अवेलेबल है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, ये देखिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी इन कोर्सेज से रिलेटेड मटेरियल भी आपको यहाँ अवेलेबल है और इसको भी आप सिमिलरली ब्राउज कर सकते हैं। देन यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में भी जैसे आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो कंसल्ट करना है, say for example we go to the School of Social Sciences, as all of you are from social sciences, so I am going to the community। अब इसमें आप जब कलेक्शन इन दिस कम्युनिटी में जाएंगे तो वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो वी विल फाइंड कि ऑन दीज पर्टिकुलर इश्यूज वीडियोस आर अवेलेबल। अगर इसमें आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है देन यू कैन गो थ्रू दैट। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम कंसल्ट किए थे। सो यहां आप 1 by 1 जब एक एक टैब को क्लिक करेंगे, देयर इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग, ये एक नया एडिशन है और इसमें देखिए इन सब स्कॉलर्स ने, असगर अली,
इनका कंट्रीब्यूशन है। हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर जाना चाहते हैं, जस्ट आप कंट्रीब्यूटर तक जाइए, यू विल गेट द देयर कंट्रीब्यूशन, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। यस, वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज ओनली। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा एंड यू कैन गो टू द व्यू, और उसमें आप फिर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यानी not only you are getting the repository which are there already in eGyan-Kosh। eGyan-Kosh ने क्या किया, अपने साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट ओपन जो कोर्सेस है उसका मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एडिशन है, मतलब अलग अलग स्कूल्स के साथ क्लब होना, चाहे वो अब स्वयं के कोर्सेज होना, स्वयं प्रभा चैनल्स के साथ कनेक्ट होने से क्या कि विद इन वन प्लेटफॉर्म, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप अलग अलग जो ओपन ई रिसोर्सेज के अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन सब में अवेलेबल मटेरियल को आप इसमें ब्राउज कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस में आप जाए तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। अभी इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा मैंने पहले ही बताया था कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फिर देखिए जो ESLM जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है डिफरेंट कोर्सेज में अवेलेबल है, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के, इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको BS जी आपका एंथ्रोपोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, सीधा इसमें क्लिक करिए, सेमेस्टर 1, 2, 3 करके हैं। यहाँ आपके राइटर वर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम सेमेस्टर 5 में जाते हैं, उनके कोर्स को हमने दिया, उस देयर हिंदी मटेरियल, इंग्लिश मटेरियल सारा अवेलेबल है एंड यू कैन ब्राउज इट। और इसको आप उसी तरह से क्लिक करके यू कैन डाउनलोड दैट। ऑनर्स कोर्स पर अलग से यू आर गेटिंग, मींस जनरल कोर्स यू अंडरस्टैंड कि उसमें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी और उसमें रिलेटेड आपको मटेरियल अवेलेबल होगा। ऑनर्स कोर्स में यू विल गेट द एडवांस डिटेल। से फॉर एग्जांपल इन ऑनर्स कोर्स यू गो टू द पॉलिटिकल साइंस, हियर कोर कोर्स में हम लोग हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि वी मस्ट नो समथिंग डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन आवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टेक्निक्स ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग, अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं या इस पर कहीं कोई आपने टॉक सुना है, आप उसको और ब्राउज करना चाहते हैं, यू गो थ्रू दैट। फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट्स, ओरल टेस्टिमोनी, इन सब को भी आप, मतलब एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, दो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू स्टडी की बात की जाती है, दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर थ्रू दिस platforms easily, because you are getting all type of resources starting from video, recorded lectures to PDF content on various subject here. Other courses में हम पहले आप लोग को डिस्कस किए थे, साइंस के कोर्सेज, कॉमर्स के कोर्सेज एंड टूरिज्म और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। ब्राउज सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ कम्युनिटी और कलेक्शन वाइज आप इशू डेट और डेट वाइज आप ब्राउज कर सकते हैं। जैसे हम इशू और डेट वाइज हम जाते हैं, इसके बेसिस पर अगर हम ब्राउज करना चाहें तो वी कैन सेलेक्ट, जैसे फर्स्ट हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ था उसी को इसने ले लिया है। जैसे यूनिट 1 अल्थुजर, लेट अस गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेटेस्ट एडिशन में जाके वी कैन गो थ्रू इट एंड वी कैन, ये आइडियोलॉजी आपके डिस्कोर्स और जेंडर से पर्टिकुलर टॉपिक है एंड यहाँ आप उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल यू कैन गो थ्रू इट। तो ये बहुत इजीली यू कैन डाउनलोड दिस मटेरियल एंड इट इज इजीली एक्सेसिबल एंड you have to just explore each and every tab as much as you can explore. Contributors में जाइए, you have the list of scholars. आप अगर एक particular scholar के context में, जैसे A.S. नारंग, I think most of you are familiar with A.S. नारंग, BA third year में आप Indian Government and Politics में उनकी बुक पढ़ते हैं, उनका एक block 4 अवेलेबल है, फेडरलिज्म इन इंडिया। इसको आप अगर कंसल्ट करना चाहे you can just view and open and that particular content is available for you। क्योंकि ये MB में है तो ये फाइल लोड होने में टाइम ज्यादा ले रहा है। सो फिर आप ब्राउज में जाइए, टाइटल वाइज भी आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। आप सपोज करिए हमने कुछ कीवर्ड में पॉलिटिकल साइंस की जगह हमने डाल दिया ज्योग्राफी, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ज्योग्राफी ऑल्सो, दे विल से थिंक दैट व्हाई ऑल द टाइम आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। सो लेट अस गो, देखो जियोलॉजी अराउंड अस,
2020 में ये इसको इशू डेट का ये मटेरियल है. Just click on it, go to the view button, and you can go through that particular material. तो जियोलॉजी अराउंड अस, इसमें आपको वीडियो भी अवेलेबल होगा. यानी जब आप इशू इस सेक्शन में आके ब्राउज करेंगे, इशू डेट, कंट्रीब्यूटर, टाइटल, सब्जेक्ट, तो इसमें अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीडियो अवेलेबल होगा तो वीडियो के थ्रू लेट मी रन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Manisha, is there audio in this video also? It's only because audio is not coming. Yes, yes. It's not Please audible. unmute yourself, Manisha. Audio it was not audible, so maybe because it was not, maybe because on Meet it may not be taking, Yes. because you are sharing the screen, so sometimes it doesn't Yes, take. yes. So fine, okay. Because sometimes it happens, but when you will Yes. at your part you will explore now, you will definitely will understand that audio is very clear, and at your part jab aap khud you are parallelly you are exploring the things na, you will find that the audio is quite clear. Through Meet we change the tabs and we have to switch off the mic, and some maybe that was the reason. So in browse section you can find various material on title wise, subject wise. Say for example, you will find here subject wise. If you want wish to know something about Ambedkar, go Your to. screen is Manisha, not your visible. screen is not visible. You have stopped sharing your screen. Oh, sorry. Just a minute. Yes. If we want to just geology around us, we have yet discussed. Let us come that we browse by subject. In subject section, we get Dr. Bhimrao Ambedkar. If you want to know more details about one of our important freedom fighter and constitution maker, go to that particular unit. Yani, it's not limited for a particular subject student. Anybody can go through it and browse it for getting more knowledge on some specific studies. Contemporary political thinkers. Is particular collection may you will find this particular piece on Dr. Bhimrao Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru and Bhimrao Ambedkar. And you will get the comparative study of both the scholar. So in this way, you can browse the materials in eGyan Kosh, and there are several other tabs. And this help section, as initially I have discussed, it talks about DSpace, where the materials can be collect, and we can browse the communities. You can contribute there with their terms and conditions. So this is another section which is advanced. Communities are being attached with eGyan Kosh, so that intellectual property should be shared with each other, because these are these intellectual discourses on contemporary issues that must be shared with each other and should be open. It must be made openly accessible to each and everyone. So some of the people, those who are interested, they can contribute in this particular space. They can register and they can have proper track of their contribution subscription with this DSpace help tab. So I think let me stay up here, and if there are any doubt and query, you may please ask. If any student wants to ask something, if anything is not clear, so you can ask. If any step was not clear, most probably it is so that if you will start exploring at your own, you will learn more and more. But if any step was not clear, you can ask Manisha ma'am. And if everything is clear, then please let us know.
that it was clear to you? Ma'am, how can I Ma'am, it was register myself? It's simple. Just I am showing it. You at initial level, go to Google, write eGyan Kosh. Go to the home page. Sign in to. Here you are seeing that at the top right section, sign into my eGyan Kosh, receive email updates, edit profile. As I am registered, so I just go to the my eGyan Kosh. They will ask you about email address. Write down your email address, and you have to create one password, and you will get an activation notice in your email address, and you have to just activate that particular link. When you will activate it, then you will be registered in this eGyan Kosh, and you will get some latest informations and updates here through your mail. I hope answer is clear. Seema, you were also asking something. You wanted to ask something. Seema, कुछ पूछना है आपको? No, ma'am. Okay. So if there is no doubt, then this session was actually very useful, because you see, there was a time when we used to consider that for student, IGNOU material is like something. I mean, if you have to understand any topic very clearly, then we used to ask them to consult IGNOU material. And for long time, IGNOU material was available only for IGNOU students. But IGNOU did something very significant when it made it open for all, where you all can access that material. And as it was very clear that on eGyan Kosh, you will find content or developed by IGNOU as well as some other resources as well. So this is, and there are multiple filters, there are multiple browsing type. And what is the purpose? As Manisha ma'am clearly mentioned, that the purpose is what? That all these platforms, it is like a sea. There so much resources available there. So these filters help you to find out your content. जब भी आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अभी जब मैम ने बताया, तो आप देख सकते हैं कि इतने तरह के रिसोर्सेस हैं। कुल मिला के वहाँ यदि आपको अपने कंटेंट को ढूंढना है, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. यू शुड नो योर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, एंड कि कहाँ कहाँ पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. और दूसरा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट दिस इंटरफेस एंड फिल्टर, जो मनीषा ने बहुत अच्छे से आपको एक एक फिल्टर्स के बारे में बताया. और आप इसको जितना अधिक एक्सप्लोर करेंगे, यू हैव टू गिव योर टाइम एज यू गिव टू द लाइब्रेरी. We in this session you have been introduced how to use the library. Now the using library is your task. Which book you want, that you only know. Whether you are a student of geography, sociology, psychology, you only know that which book you want. But in this session she discussed the method how to search your book. So I'm very hopeful that this session would be very helpful for you all, and you all will search some content related to your topic, and quality content, because you see the content which is available on eGyan Kosh, which that is developed by the experts in that particular field, those who have which can be said the established name in that field. So obviously you will get very good content there. And the most important part of eGyan Kosh, because yesterday we were discussing EPG, the day before yesterday we discussed EPG Pathshala, was what is the limitation? The content is available only in English, not in Hindi. Although in NDLI you will get content in Hindi also. So eGyan Kosh has a very important feature that it allows you to search content also in Hindi. हिंदी में बहुत सारा जो गुणवत्तापूर्ण कंटेंट है वो आपको वहां पर उपलब्ध होगा. तो आपको उस पर अधिक से अधिक अपना समय देना होगा, और जितना आप समय देंगे उतना आप सीखेंगे. So I think Manisha, what you suggest me? Can we start the second session? Okay, Seema, you want to say something? You are raising your hand.
यस मैम। मैम एक्चुअली हमने इग्नू ई कंटेंट ऐप डाउनलोड किया था, तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है एक दूसरे से? Actually, Seema, when the mobile app is very much similar to this one, but you will get some features are not available in your mobile setup. That this is one of the drawback. When you will maybe you will not be able to access some of the text, but rest of the you can browse it, you can go through it. While downloading section में कभी कभी क्या होता है ना कि आपके system में you will get more features because some of the features are not visible in your mobile, that was not available in that app of IGNU, of eGyan Kosh. But when you browse that particular materials through your system, you will get more and more details. That is the basic difference. ओके मैम, थैंक यू मैम। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो एनडीएलआई में भी है, और जो भी, क्योंकि एप्स की अपनी लिमिटेशन होती है। ऑल्दो ये इसलिए एप्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, वो एप्स के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पर आप अगर मोबाइल पे भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो उस पर एक ऑप्शन डेस्कटॉप व्यू का आएगा, तो उस व्यू से आप मोबाइल पे भी आप थ्रू उनके वेब पेज, एक तो तरीका है आपने उनका ऐप डाउनलोड किया, आप सीधे ऐप में जाते हैं। दूसरा तरीका है कि जिस तरीके से हम लैपटॉप में सर्च करते हैं वैसे आप उस वेब पेज को सर्च करेंगे और वो वेब पेज खुलेगा। उसमें जनरली एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप व्यू, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो वो पूरा उसका जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप व्यू में आपको दिखेगा, और वहाँ आपको जो मैम अभी कह रही थी बहुत सारे फीचर्स है, वो फीचर्स आपको मिल सकते हैं। So you can try both the ways. App is more handy. So if you want to explore more and more, then you need to go to their web page. That will give you more and more option to explore and search. Now moving ahead, next session is going to be very, very important. Why? Because InflibNet and especially Enlist contain n number of research resources. And the students who are doing their masters, they most of them have to submit a dissertation. Those who don't have to submit dissertation, even then they will have to, if they go for research, they'll have to prepare synopsis. So we all look for that platform where research content is available. So on InflibNet, Enlist, very good journals are available. So that will be very, very helpful for you all. So for the next session, I'll again request you, Manisha, to please start your session, and we'll go in the same manner, theory part little bit and then the hands-on session. Yes, thank you. Over to you, Manisha. Yes, thank you. So when we talk about InflibNet is such a good initiative by Government of India that here you will find the collection of each and everything. In InflibNet, you are going to have the details of Shodh Ganga, Shodh Sindhu, starting from other e-resources which are available to some of those contents which are not easily accessible. Everything is available. And the most important part with InflibNet is that they have so many recent developments and communities they have built up. So many sections are there. They are modernizing your library, and when they are modernizing your library, they are making interconnectivity of all the libraries of our country. And when all the library will be connected, then you can understand the resources which are available in JNU and DU and Calcutta University, that will be at your Vasanta College for Women's Library. So this is the foremost important contribution of this InflibNet section. Is it visible? My screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So when we talk about InflibNet, it is basically information and library network, InflibNet. Okay, it is a autonomous inter-university center of UGC under Ministry of Education. ये आपका जो आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय का जो एक संचरण है, नेटवर्क है, इसका कनेक्टेड सेंटर है, जो एक स्वायत्त अंत विश्वविद्यालय केंद्र की तरह वर्क कर रहा है आपके यूजीसी के अंडर। बेसिकली ये यूजीसी में मार्च 1991 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था
ताकि जो हायर एजुकेशन में, एकेडमिक में, रिसर्च के लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और इसको एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में जून 1996 से ये डेवलप हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन गांधीनगर, गुजरात। This is the particular home page. When we will go to the hand-on session, we will go through it. It is its stable URL access, https // or www.inflipnet.ac.in. Then when we talk about InflipNet Center ना, ये इसका मेजर वर्क क्या है? It was modernizing university libraries in India. और जो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरीज को ये मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इट मीन्स दे टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्कैटर्ड फॉर्म में, दैट कैन बी गैदर्ड एंड कम अंडर वन शेयर, इट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन दोज हु हैव द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर नॉलेज। और इसमें स्कॉलरली जो कम्युनिकेशन है इसको प्रमोट करते हुए इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनफ्लिपनेट्स का रखा गया, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, दैट इज टू प्रमोट एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड एक्सेस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कॉलरशिप, लर्निंग एंड रिसर्च। यानी इसके थ्रू मतलब एक दूसरे से कनेक्शन, संचार को स्थापित करना। जैसे इस मोड में वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, तो सिमिलरली अगर हर लाइब्रेरी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया, तो डेफिनेटली हर जगह की रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग जगह के रिसोर्सेज और लाइब्रेरी उसको एक्सेस कर पाएगा। और इससे क्या होगा कि लर्निंग, रिसर्च, एकेडमिक लेवल पर एक कोऑपरेशन के थ्रू जब सब लोग इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली इससे हर एजेंसी बेनिफिटेड होगी। और ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो दैट विल बी अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, जैसे आपका नॉलेज सेंटर, उसको इसमें इसका पार्ट है आपके वसंता कॉलेज फॉर वुमेन की लाइब्रेरी। एंड इट्स आई सजेस्ट यू कि यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ Banaras Hindu University and you are connected with such a highly esteemed college of our Vasanta College, and we have this facility. और मैं each and every year मैं अपने थर्ड ईयर के BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि गेट रजिस्टर्ड इन इनफ्लिपनेट, जस्ट गो टू द लाइब्रेरी। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए कॉलेज के, वहां पर आपके लाइब्रेरी स्टाफ से आप बात करिए, they will just provide you an email address, just आपका email address, name, class, roll number, enrollment number, कुछ basic details वो आपसे पूछेंगे, you just provide them, वो आपकी email को उसके registered कर देंगे। You will get an link in your email address, you just click on that particular link, उसके बाद आप अपना password set करके आप easily उसको access कर सकते हैं। तो it's my suggestion that please all of you must register yourself because all of you are now going to be the part of more deep studies, research, and so for that purpose it's very essential that you must explore the InflipNet Center for getting standard e-resources in the form of e-books and e-journals. और इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेजेस जैसे हमारा कॉलेज है, यूजीसी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, R&D के इंस्टीट्यूशंस है, सब लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो ये कंप्यूटराइजेशन का ऑपरेशन वर्क हो रहा है, सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे कंट्री में अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंटर्स के थ्रू एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। टेक्निक्स में गाइडलाइंस, मेथड, प्रोसीजर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस है अलग अलग लाइब्रेरीज की, वो एक पूलिंग, एक शेयरिंग, एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन का लिंक प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जो नेशनल नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टिंग वेरियस लाइब्रेरीज है वो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी फुलफिल्ड। और इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो इंडिया में लोकेटेड है, जो इस पे हैंडलिंग कर रहे हैं अपने एबल के रिसोर्सेस को, कैसे वो उसको और एडवांस कर सकते हैं, कैसे उसको और एनरिच कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग की सीरियल्स डेवलप किया जाता है। यानी कैटलॉग आप रिमेम्बर कि आप लोग जब लाइब्रेरी में जाते हैं, थ्रू कैटलॉग आप लोग अपने बुक को सर्च करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन जब कैटलॉग होगा देन यू कैन इजीली सर्च योर particular topic of your subject by title, by contributor, by issue date। और उसमें not only PDF of text book, और जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि यहाँ you are going to
visit some advanced subjects. Advanced studies का ये पूरी तरह से it opened the door for the advanced studies. And thesis, dissertation, monographs, नॉन बुक मटेरियल जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ऑडियो विजुअल मटेरियल है, कंप्यूटर डाटा, मल्टीमीडिया, हर तरह का मटेरियल जो है इसमें आपका अवेलेबल होता है। बेसिक जो इसके फंक्शंस भी है, जैसे अब इसके कई इंपॉर्टेंट सेंटर्स के थ्रू ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सोर्सेस है, साइटेशन, एब्स्ट्रैक्ट, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, जो इंडिजिनस क्रिएटेड डाटा बेसेस है, सेक्टोरल इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह है, उसको गेटवे के थ्रू ऑनलाइन एक्सेसिबल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डाटा बेसेस, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जो डाटा बेसिस है उसको नेशनल इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू कैसे उनको एक्सेस किया जा सके, आर्काइव को डेवलप हो, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाए कैटलॉग प्रोडक्शन के थ्रू, यानी किसी भी लोकेशन और डिस्टेंस में रहने पर भी आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और ये जो डाटा बेसिस है प्रोजेक्ट से लेके आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस टू के लिए भी ये डाटाबेस हेल्प करता है, स्पेशलिस्ट के लिए भी ये हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये एक पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है जिससे हर जगह रिसोर्सेज जो है वहां तक एक्सेस रिसोर्सेज की पहुंच पा रही है। और इससे फायदा किसको मिल रहा है, द होल एकेडमिक कम्युनिटी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, दे आर गेटिंग द बेनिफिट, they are getting the benefit of these resources through electronic mail, file transfer, audio visual, हर तरह की conferences का details it is easily available there। and जो इसमें जो आपका इन्फ्लिपनेट का सेंटर जो वर्क कर रहा है वो डिजाइन अलग न्यू इनोवेशंस को स्टडीज भी की जा रही है, उसको नए तरीके से डिजाइन भी किया जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा मैनेजमेंट के जितने एडवांस सिस्टम है उस तक सब यूनिवर्सिटी, सब सेंटर, सब कॉलेजेस की पहुंच बन सके। नाउ कम टू द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। सो देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज, इंटकैट, सोल, ई शोध सिंधु, एनलिस्ट, इन्फिस्टैट, इनफेड, शोध शुद्धि, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, IR@, इन्फ्लिपनेट, ILMS, रिसर्च प्रोजेक्ट DB, इन्फोपोर्ट, ये कई इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो है आप ये सब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आप इन्फ्लिपनेट के ऑफिस में देखेंगे। जैसे इंडकैट जो है ये आपका पोर्टल है फॉर ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम, ये मेनली यूज किया जाता है फॉर टू प्रमोट कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये एफर्ट किया गया ताकि जो यूनियन कैटलॉग है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि हर लाइब्रेरी का एक कॉमन बेस, एक नेशनल लेवल पर एक यूनियन कैटलॉगिंग जो रहेगा तो वो मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो भी जहां से एक्सेस कर रहा है उसको वो डिटेल्स मिल पाएगा। देन सोल, दैट इज सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इट इज एन स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय इन्फ्लिपनेट सेंटर। कैसे लाइब्रेरी को और एडवांस और टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाए और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए टू वर्क अंडर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, और इससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, नेटवर्किंग, सर्कुलर के रिलेशन के प्रोटोकॉल्स इस पे डिजाइन किए गए हैं। और अभी आपके फरवरी 2021 में सोल 3.0 का जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया है और इसका अब तक 3800 प्लस एरिया आपके इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इसका इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। यानी एडवांस जो सॉफ्टवेयर्स है वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज के लिए डेवलप करके इन्फ्लिपनेट सेंटर उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो इस फील्ड में और अच्छे से फर्दर बिल्डअप करे। देन ई शोध सिंधु, ये जो यूजीसी का इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है, ये बेसिकली हायर एजुकेशन के जो मटेरियल्स है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस है उसका ये रिपोजिटरी है। और यहाँ यूनिवर्सिटीज के साथ कॉलेजेस, आपके सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। और ये ई सिंधु जो शोध सिंधु का ही इनिशिएटिव है कि योर कॉलेज इज आल्सो गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द इन्फ्लिपनेट इंक्लूडिंग द एनलिस्ट। और इसके थ्रू क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, फुल टेक्स्ट, फैक्चुअल डाटाबेसेस जो है वो एक लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बहुत ही मिनिमम रेट पर ये अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड की जा रही है। और इसका जो कलेक्शन है, अब एनलिस्ट जो है, एनलिस्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इस पर हम डिटेल में आगे आएंगे।
एनलिस्ट और एज वेल एज AICTE जो कंसोर्टियम है, ये दोनों मिलकर ये शोध सिंधु को डेवलप किए हैं। और यहाँ यू विल गेट 10,000 e-journals, 4 bibliographic databases, 19 lakh e-books and near about 600,000 e-books through NDN। यानी यहाँ हर इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके सेंटर्स हैं आपके ऑनलाइन स्टडीज के, उन सबको क्लब किया गया है। और 98 सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें NIT, IIT से लेके 217 यूनिवर्सिटीज, 134 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और 3,200 कॉलेजेस जो है इस बेनिफिट को अवेल कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट it is providing us huge resources and we have to just understand the technique। इसी तरह जो अदर सर्विसेज है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, जैसे इन्फीस्टैट्स है, इसमें स्टैटिस्टिकल पोर्टल है इनफ्लिपनेट का, जिसमें जो स्टैटिस्टिकल डाटा, जो वेरियस रिसोर्सेज जो एक्सेस हो रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, वो किस लेवल पर हो रहा है, कहाँ कौन सा रिसोर्सेज हो रहा है, उसको ट्रैकिंग इसमें किया जाता है, जो कि पब्लिशर वेबसाइट से ही उसको ट्रैक करता है। देन इनफैक्ट द इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, ये एक तरह से ट्रस्ट बिटवीन ऑल पार्टीज की तरह मेंबर इंस्टीट्यूशंस में, ये जो होता क्या है ना, पहले IP एड्रेस के थ्रू हम लोग IP फिल्टर को यूज करते थे रिसोर्सेज को एक्सेस करने में। उससे प्रॉब्लम क्या होता था, उसमें एक लिमिटेशन क्या थी कि IP फिल्टर यूज करके आपको एक कैंपस में, जैसे जस्टर का ही आप एनलिस्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए कि इनिशियली आपको PHU कैंपस में रहना पड़ता था, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन जस्टर। बट व्हेन ये जो इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन इनफेड को जब अडॉप्ट किया गया, और इसके थ्रू जब इनफेड ने दे अडॉप्टेड शिबोलेथ जो है एक स्टैंडर्ड बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इससे क्या हुआ, इट ऑथेंटिसाइडिंग ऑथराइज्ड यूजर फॉर एन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग देम सीमलेस एक्सेस टू रिसोर्सेज फ्रॉम एनी टाइम एंड एनीवेयर, जो कहीं से भी वो एक्सेस कर सकता है। और इससे क्या होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज हर जगह, सिंगल भी इंस्टीट्यूशनली हर लेवल पर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर कैंपस में रहना इज नॉट दैट मच एसेंशियल। फिर शोध शुद्धि भी आपका इनफ्लिपनेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि प्लेगरिज्म का जो इट प्रोवाइड द फॉर प्लेगरिज्म डिक्टेशन software to all Indian universities, institutions, including all central, state, आपके institution, जिससे कि जो प्लेगरिज्म का जो चैलेंज है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। देन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ये जो सेंटर है ये इसको IR@implement जो है डी स्पेस को यूज करता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो पेपर जो पब्लिश्ड होते हैं प्रोसीडिंग्स के अंडर, उनको अपलोड किया जाता है, और इसमें कई ऐसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग से लेके ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है जो कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब्सटेंस प्रोवाइड करता है फॉर द हायर एजुकेशन फील्ड। देन ILMS, ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ILMS है, ये इनफ्लिपनेट का ऐसा सेंटर है। इट ऑफर्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सेंटर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर getting this EPG Pathshala and their guidelines, these are also been included in it। ये थ्रू ILMS इनफ्लिपनेट के साइट पर जाकर भी आप EPG Pathshala और इन सारे जो काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग मटेरियल्स अलग अलग जगह में अवेलेबल है, उन सबको क्लब करके एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला, एक सेंटर के अंतर्गत आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग थ्रू द इनफ्लिपनेट साइट। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट डाटाबेस, ये भी डिटेल में जो कंप्लीट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। एंड इन्फो पोर्ट, ये जो है दैट इज गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज डिजाइन टू फैसिलिटेटिंग रजिस्टरिंग एन इंटरनेट रिसोर्स इनटू पोर्टल एंड एक्सटेंडिंग इट एक्सेस यूजर, कि कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो डिजाइन किया गया है इंडियन गेटवे, उसमें पहुंचने के लिए क्या क्या उसके प्रोविजंस ऑनलाइन बनाए गए हैं, कैसे उसको रजिस्टर्ड करना है, और इंटरनेट रिसोर्सेज के अलग अलग पोर्टल क्या है, कैसे यूजर्स उस तक एक्सेस कर रहा है, इन सब का जो डिटेल्स है। और ये ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज का पूरा जो डाटा है, उसका पूरा जो स्पेसिफिक डाटा है वो प्रोवाइड करता है एक स्थान पर। नाउ लेट अस कम टू एनलिस्ट। एनलिस्ट जो है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके इनफ्लिपनेट का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
The full form of Enlist is National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content. ये इसके स्टेबल URL एक्सेस है, और ये जो है ये कॉलेज का कंपोनेंट है जो कि ईद सिंधु कंसोर्टियम के साथ 6,000 more than 6,000 journals, near about 2 lakh e-books और 600,000 e-books NDL के थ्रू हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपके 4 मई 2010 में फॉर्मली लॉन्च हुआ था। Enlist का अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ये इन्फ्लिमनेट सेंटर और इंडेस AICTE के कंसोर्टियम में ज्वाइन वर्क किया था। बेसिकली इनका जो फंक्शन है, इस कंसोर्टियम को क्लब करके जब ये प्रोजेक्ट Enlist स्टार्ट किया गया, देयर मेन फंक्शन इज क्रॉस सब्सक्रिप्शन टू e-resources सब्सक्राइब्ड बाय द 2 कंसोर्टिया। यानी इन दोनों कंसोर्टिया के द्वारा जो रिसोर्सेज सब्सक्राइब किए गए हैं वो उस पर एक्सेस प्रोवाइड करना, और ये एक्सेस यूनिवर्सिटीज के साथ ही टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को और एक्सेस टू द सिलेक्टेड कॉलेजेस को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं Enlist के। टू सब्सक्राइब एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सिलेक्टेड शोध सिंधु e-resources टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जो तकनीकी संस्थान है उनको एक्सेस देना, एंड सेलेक्टेड इनसेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ आपके टेक्निकल के साथ आपकी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एडेड, नॉन एडेड, सब कॉलेजेस को ये प्रोवाइड कर रहा है कंपोनेंट। कहीं ना कहीं इसका और मॉनिटरिंग भी करता है, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग, ये मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह भी वर्क कर रहा है कि प्रमोट हो, ट्रेनिंग भी इम्पार्ट किया जाए, ऐसी एक्टिविटीज दिया जाए ताकि और इफेक्टिव तरीके से एट कॉलेज लेवल रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग इनके द्वारा इम्पार्ट की जाती है, ताकि अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और टूल्स को डेवलप करके कॉलेज अपने लेवल पर भी इस वर्क को कर सके। और 2014 से Enlist का जो प्रोग्राम है ये सब शोध सिंधु कंसोर्टियम के साथ कॉलेज कंपोनेंट के रूप में मर्ज हुआ है, और इसके थ्रू कई इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड की रही है। और जैसे अगर हम इसको कॉलेज करना है, जैसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको रजिस्टर्ड करना होता है Enlist की वेबसाइट में जाकर, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके, जो भी कॉलेजेस आपके, जैसे आपका खुद का कॉलेज इसमें मेंबर है, और ये आपका जो इसकी मेंबरशिप वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन रहता है वैलिडिटी का। Enlist पे जब हम लोग जाएंगे, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अंडर Enlist इज योर JSTOR। मेरा सजेशन है कि आप हमारे जितने स्टूडेंट हैं सब लोग Enlist में रजिस्टर करके JSTOR को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। इट इज अ हाईली यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग एक्सेस टू योर ऑनलाइन रिसोर्सेज। इसमें मेंबर लॉगिन के लिए आपका मेंबर के रूप में लॉगिन होना बहुत एसेंशियल है अगर आप फुल टेक्स्ट चाहें, क्योंकि अगर आप गूगल के थ्रू जनरली आप सर्च करने जाएंगे तो आपको पूरा PDF आपके सामने ओपन नहीं होगा। फॉर फुल टेक्स्ट एक्सेस इट इज वेरी एसेंशियल कि मेंबर यूजर लॉगिन, यानी कॉलेज से आप Enlist में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आप गूगल में जाके पहले Enlist क्लिक करेंगे, देन यू विल गो टू द JSTOR। डायरेक्टली JSTOR में जाएंगे तो यू विल नॉट गेट द एक्सेस। इसमें आप यूजर नेम, आप रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, और जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है इनिशियली, फिर वो आप अपने लेवल पर चेंज करेंगे, फिर आप लॉग इन करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके। फिर एम्पल मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, और कुछ एडवांस सर्च के भी ऑप्शंस है जहाँ कीवर्ड्स और फील्ड के थ्रू आप जो आपके लिए अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स है, बुक्स है, उस तक आप अपना एक्सेस बना सकते हैं। जो e-resources Enlist में है, अभी हम उस पर जाएंगे कि यहाँ पर यू विल गेट जो ये e-resources का जो कंसोर्टियम है, ये कॉलेजेस को भी जो सब्सक्राइब थे अंडर Enlist प्रोग्राम, कई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से जर्नल्स जो फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स से लेके EPW जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन जर्नल्स है, JSTOR है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के मटेरियल अवेलेबल है। फिर ई-बुक्स भी अवेलेबल है, कैम्ब्रिज बुक्स ऑनलाइन, ई-लाइब्रेरी, देन हिंदुस्तान बुक एजेंसी, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड, स्प्रिंगर ई-बुक, वर्ल्ड ई बुक लाइब्रेरी, ये सारा मटेरियल जो है आप इजीली वहां एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस InflibNet is definitely, it is modernizing not only the university libraries, it was connecting each and every institution so that each and every person can have access to the standard resources, and the college institution, they must develop the tools and techniques, they create their own catalogs and create their own technologies so that they can also contribute in this type of resources. So I think that this is
sufficient for this theory part. Can I proceed to practical hands-on session, or is there any doubt? I think you can start the hands-on session, because only then they will able to understand how the registration, other thing. Then they will have doubt, and Okay. then you can clarify it. So go to the Google page. It is visible, no? Yes, yes. Thank you. Just go to, if you want to go to InflipNet, just type. First of all, मैं briefly आपको InflipNet के details पे जाती हूँ. Then I will go to the details of Enlist. ये आपका जो है, जो InflipNet सेंटर, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इट इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर. और यहाँ देखिए जो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जा रही है InflipNet के थ्रू, मेजर जो इसकी एक्टिविटीज है, कन्वर्सेशन लाइब्रेरीज है, कंटेंट्स पे सब जो इम्पोर्टेंट, जो लेटेस्ट अपडेट से लेकर जो मेजर प्रोग्राम्स है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे शॉर्ट में, इसमें और भी आपके एडिशन डे बाय डे होते जा रहे हैं. और इन सब इम्पोर्टेंट सर्विसेज के थ्रू यू कैन एक्सेस इम्पोर्टेंट मटेरियल्स which is essential for your own studies. Let us come to the Enlist program. Enlist program, ये इसका जो आपका इंटरफेस है, जो कॉलेज कंपोनेंट की बात हम पहले कर चुके थे, इसके लिए कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गया है. अब अगर मेंबरशिप आपको लेनी होगी, एज आई एम ऑलरेडी मेंबर, तो मैं मेंबर लॉगिन में जा रही हूँ. मेंबर लॉगिन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुलेगा. दिस इज मैं अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाली हूँ, फिर अपना पासवर्ड हम इसमें डालेंगे. आप जब कॉलेज में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो यू विल गेट द डिटेल्स. देन यू हैव टू गो टू लॉगिन. लॉगिन करने पर यू विल गेट दिस होम पेज, सब्सक्राइब्ड ई रिसोर्सेज. जब आप सब्सक्राइब्ड ई रिसोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो ई जर्नल्स और ई बुक्स, यहाँ जो कॉलेजेस को ई जर्नल्स और ई बुक्स प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में डिटेल्स है. देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड एनुअल रिव्यू EPW, इधर आपके सारे ई जर्नल्स हैं जो कि सब्सक्राइब किए गए हैं कैम्ब्रिज, और इधर आपके ई बुक्स है जो कि सब्सक्राइब्ड है. लेट अस गो टू EPW, क्योंकि मोस्टली वी सजेस्ट दिस साइट. जब आप yes, Manisha, you go ahead because it always shows this. okay. Ma'am, click on advanced. Ma'am, proceed. Yes. इस तरह के कोई ऑप्शन आते हैं, तो व्हाट आई सेड ना कि यू हैव टू browse from your part also. When you will register there, you will understand that how to access this. फिर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन आप देखिए, EPW का ये आपका होम पेज ओपन होता है. Here the latest issues from editorial decks, editorials अभी recent के जैसे असम evictions, the जस्टिस एंड ट्रावेस्टी और जस्टिस ह्यूमन, इन सब को आप कमेंट्री, पर्सपेक्टिव, इन सब को आप ब्राउज भी कर सकते हैं. जो रिसेंटली जस्ट अ मिनट. Meanwhile, one question was there in the chat box from Sony. What is plagiarism? Actually, plagiarism is a kind of, I mean, it's we in the academic writing,
we use others resources, fine. एंड प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपका लिखा होना चाहिए। रिसर्च का मतलब है हम पहले के रिसर्चेस को साइट करते हैं, पर हम ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिखे हुए को अपना बता दें। अगर हम वो कहते हैं तो कुल मिला के बहुत सरल शब्दों में इसको हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। और उस ट्रेडिशन को, उस जो एक एविल था उसको रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ इंडिया में अब बन गया है प्लेगरिज्म के लिए, जिसमें यदि आपके कंटेंट में ये पाया गया कि आपने दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल किया है, आप कंटेंट अगर लेते हैं तो उसका 3 ही तरीका है। You can quote that, you can paraphrase it, and you can present the summary. In all these 3 cases, you have to give the reference. If you are quoting, you have to give reference. If you're taking some idea from somewhere, from someone's writing, then also you have to cite the reference. You can paraphrase it. So when you are doing that, there is no problem. But if you are taking something from somewhere and without giving reference or credit to the author, you are saying as if it is your creation, it is a kind of theft in the academic world. And to prevent that, this academic theft is called plagiarism, and which is punishable offense to that extent where if a research scholar is found doing this kind of thing, his PhD or her PhD may be cancelled. And if a teacher is fined like doing academic is found guilty of this kind of offense, then they may have to surrender their increment, and there's a lot of punishment for that. So this is plagiarism. Whenever we'll in future, if we'll organize some workshop or on academic writing, then we will take up that portion. I hope, Soni, your doubt is clear. I only Yes, use this ma'am. time Yes, because Manisha may was not there. Thank Manisha, you. please go ahead. Yeah. Yes. Thank you, Deep. Sorry for the interruption. So, when we go to this economic and political weekly, this particular site, here you will get so many sections starting from editorial, column, commentary, perspective, special articles. You can go through it, you can browse it, and you can get access of these issues, the perspectives, the descriptive India's engagement with Afghanistan. When you will go through this particular article, you can easily go through all the resources which are available in this particular section. Now, again, if we come to this endless section, let me make you understand this unique feature, that is JSTOR. Here in JSTOR, you will find that you can easily access the full text. Sometime what happen now, some of the websites you will not be able to access the full text. For that particular access, you need you come to this particular section, that is your JSTOR. JSTOR का यह home page खुल गया है. Here, search journals, primary sources, books on JSTOR. Let us type here Indian foreign policy. Indian foreign policy. इट इज सिंपल सर्च. अभी हम क्या है, सिंपल सर्च में जाएंगे. जब हम सिंपल सर्च में करेंगे ना, देखो इन सर्च देयर आर 2 ऑप्शंस. वन इज एडवांस सर्च, इमेज सर्च. 2 ऑप्शंस आर देयर. ब्राउज, वी कैन ब्राउज बाय सब्जेक्ट, जैसे हम लोग ई ज्ञान कोश में कर रहे थे, वैसे देयर आर सेवरल ऑप्शंस आर देयर. सब्जेक्ट वाइज ब्राउज कर सकते हैं, बाय टाइटल, बाय कलेक्शन एंड बाय पब्लिशर्स. टूल्स, वर्कप्लेस के थ्रू, जस्टेड अंडरस्टैंडिंग सीरीज, डाटा फॉर रिसर्च के थ्रू. कई तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यू सी दैट देयर आर 174,000 से रिजल्ट्स फाइंड है. अब हमें रेलेवेंस के थ्रू हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, न्यूएस्ट ओल्डेस्ट करके. और साइट इसके बेसिस पर जब हम देखेंगे, वी कैन फाइंड, जैसे केजे होस्लिकर, नेशनल रोल इन कंसेप्शन इन द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी. यू मे फाइंड दिस आर्टिकल इज सुइटेबल. और just go through recent trend in Indian foreign policy, Walter Anderson's article, or the future of Indian foreign policy. कोई भी आर्टिकल जो आपको लगता है कि आपके लिए ये सुइटेबल हो सकता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन, जैसे सीपी भामरी का ये पेपर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द रिपोर्टेड स्कॉलर. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस इंडियन पर्टिकुलर आर्टिकल. यहाँ डाउनलोड करने का पूरा ऑप्शन है, एंड यू कैन
डाउनलोड पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड डाउनलोड, इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पेपर एंड you can save it in your desktop. So in this way you can get access to various resources and here you जो स्टैंडर्ड जितने आपके जर्नल्स के पेपर्स है, आपके जितने मटेरियल्स, वी सजेस्ट दैट what is essential in the higher studies, that you must develop your critical understanding, critical perspective. For understanding that perspective you need to go browse this type of articles. See this Indian Foreign Policy, writer C.P. Bhamri. It is published in Social Scientist, one of the reputed journal. Though it is of 1982, but it's a very relevant paper by C.P. Bhamri. And here you have the whole paper. You just click on the download button. Download button click करने के बाद अब इसको आप अपने डेस्कटॉप में कुछ कीवर्ड के थ्रू आप इसको सेव कर सकते हैं. तो ये हमारा जो है फर्स्ट ये सिंपल सर्च हुआ जब हम जेस्टोर में सर्च करते हैं. नाउ लेट अस गो टू सम एडवांस सर्च. दिस सिंपल सर्च टेक्निक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. Yes, ma'am. अब हम एडवांस सर्च के ऑप्शन पर जाएंगे. तो हियर यू हैव टू ऐड सम कीवर्ड. Say for example, I wrote a keyword for our understanding foreign policy. Now let us change the topic. Indian democracy. Another सेक्शन इज हम थ्रू ऑथर, थ्रू टाइटल, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट और कैप्शन, किसके थ्रू? लेट अस से ऑथर. ऑथर बेसिस पर हम सर्च करेंगे. सेकंड, यहाँ सेकंड कीवर्ड भी कॉन्टेक्स्ट में है, इंडियन डेमोक्रेसी, और वी कैन ऐड अनदर कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. फिर यहाँ पे भी फील्ड्स हैं, इसमें हम टाइटल टाइप, ऑथर टाइप इस तरह से सेट कर सकते हैं. एंड सेलेक्ट एंड एक्सेस टाइप. यहाँ देखो ऑल कंटेंट, जब आप ऑल कंटेंट को क्लिक करेंगे ना तो मे बी सम ऑफ द कंटेंट्स विल लाइक दैट व्हिच यू विल नॉट गेट एक्सेस. सो ऑलवेज सेलेक्ट दिस सेकंड ऑप्शन, कंटेंट आई कैन एक्सेस, मींस व्हिच इज परमिटेड टू यू दैट यू कैन एक्सेस दैट. देन सबमिट एज वन सर्च. हियर यू व्हाट यू हैव डन, आपने अपने रिजल्ट्स जो है वो नैरो करने की कोशिश किया. जैसे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जब स्टडी सर्च किया था तो वो काफी एडवांस हो गया था. अगर इस तरह से फर्स्ट करने पर हमें अगर कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो लेट अस मेक इट मोर प्रिसाइज. जस्ट go to advanced search. Keyword, let us give only Indian democracy. Indian democracy. Let it be all fields को रखते हैं कि अगर टाइटल, ऑथर सारे सेक्शंस को रखते हैं. कंटेंट आई एक्सेस को जरूर से चेक कर लीजिए. व्हाट वी नैरो, अपने रिजल्ट्स को नैरो करने के लिए कौन कौन से आइटम्स हम सेलेक्ट करना चाहें? आर्टिकल्स, वी वुड लाइक टू हैव बुक्स. लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हिंदी इज नॉट अवेलेबल बट देयर आर सम अदर लैंग्वेजेस अवेलेबल. इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हमने इंग्लिश किया. अब पब्लिकेशन डेट, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में let us precise it from 1960 to 2021. हम इसको एक और इसको स्पेसिफाई कर दिए. जर्नल बुक्स, कुछ इश्यूज पे आप रिजल्ट फॉर, अब यहाँ पे आप जर्नल वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं. और इस तरह से हम स्पेसिफाई करने के बाद यू सबमिट द एडवांस सर्च. जब हम लोग एडवांस सर्च में सबमिट करते हैं इस तरह से स्पेसिफाई करके, ये अब हमारे रिजल्ट्स जो है वो कम हो गए. इंडियन डेमोक्रेसी, अ केस स्टडी इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग. अब
ये पर्टिकुलर क्या है कि क्योंकि हमने ईयर वाइज एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि हमें इस पर्टिकुलर ईयर से आर्टिकल्स चाहिए, हमने कीवर्ड दिया विच मटेरियल आई कैन वन कैन एक्सेस। जैसे सोली सोराब जी का ये आर्टिकल इंडियन डेमोक्रेसी रियलिटी और मिथ, वी if you want to get access to it, just go to download PDF। मतलब जितना आप you will explore it, you will definitely get more and more precise material on your particular search. Click on the download button and save it in your desktop. So in this way, when you will go through these articles and content, so you will find that these are easily accessible through this Juster section. अब यहाँ हम अपने सर्च के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे एक तो देखो when you log in with your registered, sometime what happen ना कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑप्शंस रहता है। जैसे यू गो टू द रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री अकाउंट, it's not essential कि हमेशा everything you will be able to go through college, you can suggest this to your friends also। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे JSTOR आपको कुछ मिनिमम लिमिटेड जो आर्टिकल्स और रिसोर्सेस है उस तक आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ ऑल materials, but some of the materials you will get through that. Another important feature of Juster is that let me close this particular section. JSTOR के जो होम पेज में यहाँ इमेजेस का जो ये ऑप्शन है, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस फॉर योर रिसर्च, ये एक नया जो है एडिशन है। हियर यू कैन एक्सप्लोर millions of tight cleared visual materials like artwork, map, photographs। और इसमें जब आप सर्च फॉर इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर इमेजेस ऑफ व्हाट, से फॉर एग्जांपल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा इमेजेस अवेलेबल है जो कि हम यूज कर सकते हैं। You have find 10 results, ठीक है। उसके से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप देखेंगे कुछ। जब हमने ये सर्च किया तो हो सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर इमेज होगा जो आप अपने सब्जेक्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कुछ वोमेन इशू पे आप वर्क कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ग्राफिक इस तरह के डिजाइन प्रोवाइड होते हैं। दिस इज सम अनदर इम्पोर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ जेस्टर साइट। अब जो ब्राउज करने के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ब्राउज बाय सब्जेक्ट पर अगर हम आते हैं, जैसे सिक्योरिटी स्टडीज है, सस्टेनेबिलिटी है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम स्टडी कर सकते हैं। एरिया स्टडीज है, आर्ट्स के लिए सारे सेक्शंस बने हुए हैं, आर्किटेक्चर, आर्ट्स एंड हिस्ट्री, म्यूजिक, गार्डन, लैंडस्केप, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस है, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी वेरियस रिसोर्सेस आर अवेलेबल। सोशल साइंस में जाएंगे, से फॉर एग्जांपल वी गो टू द जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में गए, आप यहाँ पर देखो डेट रेंज, जर्नल्स, अलग अलग जर्नल्स जो अवेलेबल है, 21 जर्नल्स जस्टर्स दे आर अवेलेबल, एंड डेट रेंज, कौन किस डेट से किस डेट तक अवेलेबल है। ब्लैक वुमेन, जेंडर एंड फेमिनिन, ये 2007 से 12 तक का ये इशू अवेलेबल है। लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस प्रेस का है। अब इसमें ये सारे इश्यूज है, 2010 के भी इश्यूज है, 2000 के भी इश्यूज है। इसमें आपको जर्नल के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और इसके थ्रू व्हाट इज बेनिफिट की कहीं ना कहीं आप जो पर्टिकुलर सेक्शन, किसी पर्टिकुलर, सपोज करिए आपको एक रेफरेंस मिला है, वो रेफरेंस आधा अधूरा आपको मिला है, उसका आपको फुल डिटेल्स चाहिए। इफ यू हैव द डिटेल्स विथ यू, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर डिटेल। मतलब कभी कभी होता है जो आप अपना डिसर्टेशन लिख रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, आपने कहीं पढ़ा था, आपने उसका हाफ डिटेल्स आपने लिखा है, देन थ्रू यूजिंग द JSTOR यू कैन नॉट ओनली गेट एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, बट उसका जो पूरा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे देखो, ये हमने इस
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जेंडर स्टडीज के एक पर्टिकुलर जर्नल के एक इशू पर हम गए, वहाँ हमें ये सारे पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं। उसमें हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेट अस सी द अफ्रीकन सिस्टर वुमेनिस्ट पर्सपेक्टिव। इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर हमारा एक्सेस हम करना चाहते हैं फॉर आवर रिसर्च वर्क, सो वी आर गेटिंग द एक्सेस। देखो, transitioning the caregiving role for the next generation and Africa centered womenist perspective। यानी for your advanced studies, masters level के courses, dissertation, research, paper writing, कुछ major projects, हर field में जो work करना है तो you will get ample of literature here। Now let's search image, advanced search और image search हो गया है। browse by subject हम लोग देख चुके हैं। Now let's come to the browse by title section। जब हम title section पर आएंगे तो alphabetically there are so many resources which are available, और title section में भी you have to give some specific keywords। Without keywords we cannot go। Say for example our keyword is contemporary political debates। ओके, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिबेट्स, इस पे जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ इतने रिजल्ट्स आए हैं। अब इस रिजल्ट में हमें इसको अपने रिलेवेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना होगा, या फिर हम पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड का चाहते हैं। एकेडमिक कंटेंट में हम प्राइमरी सोर्स, नॉट ओनली एकेडमिक कंटेंट, हमें प्राइमरी सोर्सेज भी मिलेंगे, सीरियल्स मिलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इमेजेस, बुक्स, डेट वाइज आप एंटर कर सकते हैं किस टाइम से किस टाइम पीरियड का हमें चाहिए। जैसे रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स नीड टू बी वैल्यू ओरिएंटेड नॉट पावर ओरिएंटेड। ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम ब्राउज करना चाहते हैं जो इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सितंबर 2009 में पब्लिश हुआ था। जस्ट गो टू डाउनलोड बटन, क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सेव इट। नाजिज्म, क्रिश्चियनिटी, सो यू विल फाइंड कि आप उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, आप किसके साइड बाय साइड सेक्शंस को देखना है। एक तो रजिस्टर्ड, हम लोग कहें कि आप एक तो कॉलेज रजिस्टर्ड बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एनलिस्ट की मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको फुल टेक्स्ट एक्सेप्ट होगा। और अपने किसी और कोई इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, दोज हु आर नॉट हियर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी, उसके लिए लॉगिन का कुछ मटेरियल तक एक्सेस प्रोवाइड होगा। डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको साइट कर सकते हैं। 3 इसमें आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। डाउनलोड के लिए आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सेव भी कर सकते हैं, और बाद में फिर जब आप इस तरह से ऑनलाइन होंगे तो आप इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में उस इशू को देख सकते हैं। और दूसरा, एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप अपने रिसर्च, अपने वर्क में साइट भी इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखिए जो नेक्स्ट इधर का सेक्शन है, देयर आर रिफाइंड रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट को आप कितना रिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम एकेडमिक कंटेंट में हम सिर्फ जर्नल सेलेक्ट करना चाहते हैं, अब वो जो 177 रिजल्ट था अब वो कम होके 167 हो गया। हम इसको डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी सोर्स कंटेंट पर फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ प्राइमरी सोर्स कंटेंट पर फोकस करना चाहते हैं। देख रहे रिजल्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट इज क्लियर कैसे हमारा रिजल्ट और कम होता जा रहा है जितना हम अपने सर्च को। और अब यहाँ जो डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है एकदम प्राइमरी रिसोर्सेस है। मद्रास असेंबली का एक डिबेट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ये आपके खासकर पीएचडी रिसर्च वर्क में ये बहुत ही हेल्पफुल रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है। से सीरियल्स के बेसिस पर अगर हम इस पर्टिकुलर इशू को सर्च करना चाहें तो यहाँ भी यू हैव गेटिंग सीरियल्स में आपके 1842 सर्चेस मिलेंगे। बुक्स, सपोज करो हमने बुक्स को रखा और बाकी दोनों सोर्स के कंटेंट को हम हटा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स और सीरियल्स को, तब देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 253 में रिजल्ट्स मिलते हैं कंटेम्प्रेरी डिबेट इन पॉलिटिक्स, जहां आप ऐसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे देखो वायलेंस एंड मेमोरी, द 100 Years इन द डार्क फॉरेस्ट,
इस तरह कुछ आप इसमें सर्च करेंगे, देखेंगे कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक पॉलिटिक्स इन इंडिया, ब्लैक पॉलिटिक्स साउथ अफ्रीका। अब इसको जैसे हमें और रिफाइन करना है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिबेट्स इन इंडिया, हमें इंडियन पर्सपेक्टिव में देखना है, तो आप कीवर्ड में थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे। फिर आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल होगा वो पर्टिकुलरली आपके इंडियन पर्सपेक्टिव में आएगा। यहाँ फिर हमारा जो है जर्नल आर्टिकल, सारी चीजों को इसने ले लिया है। लेट अस अगेन प्रिसाइज इट। जब हम इन्हें सिर्फ बुक पर क्लिक किया तो सिर्फ उससे रिलेटेड जो बुक अवेलेबल है वो अवेलेबल होगा। अगर हमें लगता है कि बुक में हमारी सर्च नहीं क्लियर हो रही है, लेट अस क्लिक ऑन जर्नल्स। जर्नल्स और बुक, जब हम इस दोनों को करेंगे, बुक को ओमिट कर देंगे, तो सिर्फ जर्नल आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्निटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सुदीप्त कविराज का ये आर्टिकल है, आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको साइट कर सकते हैं। देखिए जब आप साइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साइट दिस आइटम, आप इसको एमएलए फंड में देखिए, आपके पास एमएलए फंड का बन के सामने आ गया। बस आप इसको कॉपी करेंगे और आपका जो डिसर्टेशन है, आपका जो रिसर्च वर्क है, उसमें आपको पेस्ट करना होगा। आपने उस पर्टिकुलर बुक को ब्राउज करके उससे लिया, शिकागो स्टाइल, एपीए स्टाइल, ये सारा अवेलेबल है। आपको जस्ट इससे यहाँ से आपको, आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को अगर कंसल्ट कर रहे हैं, यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, यू कैन सेव। उसको जब सेव करते हैं तब तो जब आप फिर से लॉग इन करेंगे अपनी साइट पर, और तभी आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तभी वो ऑफलाइन आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा, जो कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इस सर्च को हम और रिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस के जितने भी कंपोनेंट्स है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फ्रॉम में आप जैसे सपोज करो 1980 से लेके हमने इसको अप्लाई कर दिया टू 2021। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होगा, हमारा जो सर्च रिजल्ट है और स्पेसिफाई हो जाएगा। एकदम लेटेस्ट हमें डेवलपमेंट्स देखने हैं। लेट अस मेक इट मोर कंटेम्पररी। 2000 से लेकर 2021 तक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कौन कौन से वर्क हुए, आपके रिजल्ट्स और कम होते जा रहे हैं। तो इसके थ्रू और सब्जेक्ट वाइज, से फॉर एग्जांपल जो मटेरियल अवेलेबल है, हम सपोज करो इतने सब्जेक्ट में नहीं चाहते हैं, हम स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्च चाहते हैं। फेमिनिस्ट स्टडीज, हाँ फेमिनिस्ट एंड वुमेन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी चाहते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है और स्पेसिफाई होगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिबेट इन इंडिया, उसमें हम फेमिनिस्ट स्टडीज के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वही हमें अवेलेबल होगा। देखिए, रिफैशनिंग मदर इंडिया, फेमिनिज्म एंड नेशन इन लेट कॉलोनियल पीरियड, यानी सब्जेक्ट वाइज भी पहले कीवर्ड डालिए, उसके बाद कीवर्ड फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर अपना कीवर्ड डालिए, और उसमें एकेडमिक कंटेंट में आप बुक्स में करेंगे कि इसको पहले स्पेसिफाई करिए। जैसे हमें जर्नल सर्च करना है, इसको आपने स्पेसिफाई किया, आपने एक पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर पीरियड में है, किस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप उसमें मेंशन करिए, क्लिक करिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, से फॉर एग्जांपल हमें जेंडर स्टडीज को हम ऐड कर दिए, 2-3 सब्जेक्ट को आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके मटेरियल जो है और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, हेलो, okay, I think that is all about this enlist and specifically using the JSTOR option. Now you may have any question, you can ask. Saloni was raising her hand actually. There was one hand raised. Saloni, are you there? Yes. Yes, ma'am. Actually, I was checking You wanted to ask the something? link which you sent. No, ma'am. Actually, I was checking the link which you sent in the messages about the enlist registration. So I accidentally clicked on the raised hand. Oh, no, button. fine, no problem, no problem. Have you registered, Saloni? I have already discussed this whole procedure in the class also. How to register? You have to talk with Puneet sir. Well, you have to go to the knowledge center. Have you registered?
Yes, ma'am, in the process, actually, the net while having the meeting is not strong enough. So as soon as the meeting gets over, it will continue the further process for registration. Actually, I'd like to inform all the students, those who are not in Varanasi. So long back, last year only, I shared the link with you that you can on if you will go on college website, there is a section of enlist. There's the registration form. You need not to go to college. If you are not coming to college, that is fine. You need not to go to college. You just click on the link. There is a registration form. You have to fill out the form. When you will be filling your form, there is one section which asks for library ID. If you don't have library ID, those students who have library ID, they can fill out that library ID. Otherwise, your payment, on your fee receipt, there is a payment ID. In place of library ID, you can just write your library payment ID, and then your registration will be done, and in 2-3 days it will be activated. And in case you are having any problem, sometimes what happens, many of the students share that they have registered but the account is not activated, maybe because there may be some issue. So in that case, you can on telephone also you can get in touch with the library staff. I have shared the number also for those students who are not from political science. Others, those who are in political science, I have already shared with them. But those who are not in political science, you can go by this process. आप अपनी लाइब्रेरी के अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, मैंने ऐसे भी रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप उसको कॉपी कर लीजिए। आप जब भी खाली होंगे उसको कॉपी करके, जब स्वाभाविक है अभी जब आप सेशन चल रहा है तो नेट आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप उसको सेव कर लीजिए और फ्री टाइम में आप उससे रजिस्टर करिए। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उसमें एक जगह पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी आईडी क्या है। जिनके पास लाइब्रेरी आईडी है वो लाइब्रेरी आईडी डालें, जिनके पास लाइब्रेरी आईडी नहीं है वो आपकी रिसीट पे जो फी आपका पेमेंट आईडी है वो डालें और वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। 2-3 दिन में वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो जो नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन गो अहेड विथ योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द सेशन। If anyone has any doubt, any query. I have already discussed about it now, that as Preeti ma'am has told you, you just go through it, and I have also shared the number of Puneet sir. You can telephonically during working hours from 10 to 3, you can ask him if your account is not getting activated. You can just take his assistance. I have talked with him and I have already shared the number in your group. So all of you must use it, and if you face any technical issue, then you can call him. If there is no question, so should we proceed ahead? Yes, I can. Okay. So now in this session, it was very, you see, this InflibNet is a very vast area to cover, and especially Enlist will be very useful for you because there's so many filters about which Manisha ma'am was talking. It will definitely help you, especially when you will start writing your dissertation or synopsis. That will be very, or some research paper, that will be very helpful. And that option of citing, that is very good. Why? Because what happens, आप हर समय साइट नहीं कर, साइट करते वक्त आपको अगर MLA फॉर्मेट में करना है या APA फॉर्मेट में करना है, ICT ने चीजों को बहुत सरल बना दिया है। There was a time when we used to write everything, और यदि उसमें एक भी कॉमा गलत हो जाता था, जो APA MLA ये सारे स्टाइल्स आप देख रहे हैं, रेफरेंसिंग की अलग अलग स्टाइल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इट विल गेट सम पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वन वर्कशॉप ऑन एकेडमिक राइटिंग, then we will definitely discuss these things also. So these are different formats of referencing, and that is very good thing that you need not to note down everything, क्योंकि अगर आप किसी भी रेफरेंसिंग स्टाइल को फॉलो करते हो उसमें आपका एक कॉमा इधर का उधर होता है तो आपकी रेफरेंसिंग गलत हो जाती है। So you have to be very accurate, and ICT is there to help you out. You need to focus more on that part which computer cannot do. That part which computer can do, you can get help from computer. So this way you can keep on exploring more and more. Manisha, you can stop sharing your screen. So if you will explore more and more, you will get more and more content. A lot of content is there. And so this session was for that. Now, I personally, I thank Manisha on behalf of the Department of Political Science
And now I'd like to, for formal vote of thanks, I'll invite student coordinator, Ms. Mayuri, for presenting the formal vote of thanks. Mayuri, are you there? Good evening to all. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. If possible, switch on your video if possible. If you are having some network issue, then it's fine. Ma'am, I have a network issue. No, that is fine. Then you may go ahead. Okay. A very warm good evening to all. It gives me an immense pleasure to all deliver the vote of thanks. I would like to thank Dr. Manisha Mishra ma'am, Assistant Professor of Department of Political Science, for giving and providing the information step by step to us. In this situation, we really need this kind of information for getting materials, because we always face this and we didn't get any material regarding in English or Hindi. So I think we all very thankful to you, ma'am, for giving this session and giving us information regarding registrations and all the things we have discussed. It's very informative for us. I would like to thank you, ma'am, for giving this such a great session to us. And I would like to thank to all. I would like to thank you to Dr. Preeti Singh, ma'am, Associate Professor, Dr. Manisha Mishra, ma'am, and Dr. Punita Pathak, ma'am, Assistant Professors, for doing this wonderful workshop. Our Honorable Principal, ma'am, who also supported on this, Professor Alka Singh, ma'am, for supporting and joining this wonderful session and giving her support to teachers and the students also. And I would like to thank our coordinators, Ms. Ritu Singh, Ms. Anamika Gupta, Ms. Megha Jaiswal, for helping us and for helping us behind the scenes. Thank you all to all who also join us, and I hope all of you must learn something and will do and research your studies related topic on the websites of Egyan Kosh and another one in libraries Tilmin. Thank you so much, ma'am, for this great session. Thank you, Mayuri. So now we have completed the third session, third day, day 3. There are few instructions for the participants regarding the assignment